Good morning. Yesterday we have seen dispatcher, preemptive scheduling algorithm, non-preemptive scheduling algorithm, and after that we have started with the scheduling algorithms first come first serve FCFS algorithm. We have seen normal problem when process number is given and CPU burst time is given. We have to find out waiting time, turnaround time for each process and at the end our target was to find out average waiting time and average turnaround time. One small point to remember, small but very important, we have to draw Gantt chart. In each process, left hand side, lower side, we have shown waiting time of particular process, and at the right hand side we have shown execution time total required, that is turnaround time of each process. Total turnaround time or turnaround time of previous processes or process is equal to the waiting time of the currently executing process. That was our concept. After that I have said that we will see similar example but with the concept of the arrival time. Before, in our last lecture we have seen only process number and CPU burst time, but what when one more column or one more information is provided, that is arrival time, then you will have three types of data or three columns in your table, that is process, it will include process number right from P1, P2, P3 and so on. CPU burst time, like previous example, that is CPU burst time for process 1, process 2, process 3, process 4 and so on. But new data added, that is new column added, is arrival time. It will be specified for each and every individual process. I will show you. See this chart. Problem number 2, example number 2. It is given clearly process number 1, it requires burst time 8 but its arrival time is 0. Process number 2, it requires 4 burst time but arrival time is 1. Process number 3, arrival time is 2, CPU burst time 9. Process number 4, arrival time is 3 but CPU burst time is 5. In this case the solution is little bit different. What and how, I will show you. There is a simple formula for waiting time. Normally we have checked the execution time and written directly the execution time of the previous process is waiting time of the current process, but in this case we have to write a simple formula. Waiting time is equal to starting time minus arrival time, and similar turnaround time means ending time minus arrival time. Means we have to simply remember, or we have to just remember that whenever arrival time is given, we have to subtract, minus it from either from starting time for waiting time and from ending time for a turnaround time. All the other calculations is similar to previous example, so no need to confuse. करना क्या है, एक ही चीज़ करनी है. अराइवल टाइम दिया है तो उसे चेक करो. वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के टाइम पे स्टार्टिंग टाइम से अराइवल टाइम माइनस करो, एंड फॉर टर्न अराउंड टाइम अराइवल टाइम को माइनस करो फ्रॉम एंडिंग टाइम. अभी देखो ये जो डायग्राम थी वो सिमिलर बनी किससे, 8495 वाले एग्जाम्पल से. P1 को लग रहे हैं 8 यूनिट ऑफ बर्स्ट टाइम, P2 को लगने वाला था 4 but 8 plus 4 is equal to 12. Then next is 12 plus 9, that is 21, and 21 plus 5 26. So this Gantt chart is similar
लाइक प्रीवियस वन जो हम लोग ने कर देखा सिमिलर है, बट यहाँ पे कंसेप्ट क्या आ गया है अराइवल टाइम का। सो वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस वन क्या है 0 नॉर्मल रहता है वेटिंग टाइम स्टार्टिंग टाइम, बट अराइवल टाइम को क्या करना है हम लोग को उससे माइनस करनी है। अभी तक क्या था हमारे पास, देखो आपको दिखाता हूँ, ये इतनी चीज़ें नहीं थी। अभी क्या करना है, ये जो मार्किंग क्या है ऑरेंज में वो अराइवल टाइम है अपना 0 1 2 एंड 3, वो माइनस कर रहे हैं हम लोग किस में से, वेटिंग टाइम से। वेट थोड़ा फेंड कर देता हूँ आपको समझ में आएगा, ये देखो। सो फॉर वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस वन P1 इज 0, बट उसमें से क्या करना है हम लोग को अराइवल टाइम को माइनस करना है। तो अराइवल टाइम क्या है उसका 0, माइनस किया 0 माइनस 0 दैट इज 0। नाउ वी विल कंसिडर द वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस 2, बट प्रोसेस 2 इज वेटिंग फॉर 8 यूनिट, लेकिन 8 यूनिट पे छोड़ नहीं देना है, हम लोग को क्या करना है 8 यूनिट में से प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम माइनस करना है, दैट इज 8 माइनस 1 सॉरी प्रोसेस 2 का। Similar case is with the process number 3. Process number 3 normal waiting time is 12, but we have to subtract process number 3's waiting time, that is in our case it is 2. So 12 minus 2 equal to 10. Now we will consider process number 4. Process number 4 is having waiting time 21, but what we have to consider arrival time, and arrival time for process number 4 is 3, so we have to subtract, that is 21 minus 3 18. So after this calculation we got proper waiting time, that is 0 and 7 for respective process 1 and process 2, then process 3 is having 10 and process 4 is having 18. Now solve like previous example which we have seen yesterday, that is we have to find out the average. How to find out average? Total number addition divided by number of occurrence, that is 0 plus 7 plus 10 plus 18। कहाँ से आई ये वैल्यू, ये वाली, ठीक है। तो इसे ऐड करो और एवरेज निकालना है, इसीलिए डिवाइड बाय 4 करो, तो इनका एडिशन आएगा 7 प्लस 10 दैट इज 17 प्लस 18 17 17 34 प्लस 1 दैट इज 35 डिवाइड बाय किससे करना है हम लोग को, नंबर ऑफ प्रोसेसेस है अपने पास 4, तो नंबर ऑफ प्रोसेस 4 है तो उसका एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो गया 8.75 माइक्रोसेकंड। नाउ सिमिलर केस इज विथ द टर्न अराउंड टाइम, पर टर्न अराउंड टाइम के केस में हम लोग क्या देखते हैं, व्हाट वी सी द वैल्यू एट द राइट हैंड बॉटम साइड, that is for P1 it was 8, P2 it is 12, P3 it is 21 and P4 it is 26. It was normal concept like yesterday, but now what we have to do, we have to do calculation with respective arrival time. In this case also we have to subtract arrival time from normal turnaround time or ending time. So टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P1 दिख रहा है सामने, इट वॉज नॉर्मली 8, बट अराइव टाइम क्या रहता था उसका 0, सो 8 माइनस 0 दैट इज 8। नेक्स्ट स्टेप इज P2 फॉर प्रोसेस 2 अराइवल टाइम इज 1, बट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 12 माइनस 1 दैट इज 11। नेक्स्ट इज 21 minus 2 that is 19, and next is 26 minus 3 that is 23। क्या किया, कर जैसा ही कैलकुलेशन था और किया, ओनली थिंग चेंज्ड
और ओनली डिफरेंस इन दिस केस इज अराइवल टाइम। जब भी अराइवल टाइम आता है उसे माइनस करो। सो टर्न अराउंड टाइम हम लोग को क्या मिल गए? फॉर प्रोसेस 1 8, प्रोसेस 2 11, प्रोसेस 3 19 and process 4 23. Again we have to find out the average. So what we will do, 8 plus 11 कहाँ पे दिख रहा है? ये वाली वैल्यू 8 प्लस 11, 11 प्लस 19, 19 प्लस 23 दैट इज 64 61। लेकिन डिवाइड किससे करना है हम लोग को? 4 से। क्यों? वी आर हैविंग 4 नंबर ऑफ प्रोसेसेस। सो 61/4 that is 15.24. As a result we got average turnaround time is 15.25. सिंपल है। दो टाइप के एग्जाम्पल देखे हम लोग ने। कल नॉर्मल वाला जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं था, और आज क्या देखा? अराइवल टाइम वाला जिसमें कैलकुलेशन था। कौन सा? अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम को क्या करना है? हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। मे बी इट इज़ वेटिंग टाइम और मे it is turnaround time, but we have to subtract, find the value, calculate the total summation divided by number of process. You will get the average waiting time and average turnaround time. Now we will see priority scheduling. Priority means what? You must be familiar with the priority. Priority means importance. अपने पास जब भी मल्टीपल ऑप्शन या चीज़ें अवेलेबल है, वो टाइम पे हमें देखना है कि किसकी प्रायोरिटी कौन सी है. डिपेंडिंग अपॉन इट वी हैव टू परफॉर्म द एग्जीक्यूशन. इन दिस केस रिफर योर बुक के सीपीयू के पास डिफरेंट प्रायोरिटी की प्रोसेसेस आती है. मे बी डेट इज़ इंटरनल प्रायोरिटी और एक्सटर्नल प्रायोरिटी कि कौन सी प्रोसेस को पहली प्रायोरिटी देनी है. जैसे कि क्या है कि अ प्रायोरिटी इज एसोसिएटेड विथ ईच प्रोसेस. प्रायोरिटी कहाँ पे रहेगी? याद करो वापस से. पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वो रिफर कहाँ पे करेगा? पीसीबी. इसीलिए बोला था कि पूरा ओएस एक ही पार्ट में नहीं समझ में आएगा. जैसे हम लोग कवर करते जाएंगे वैसे वैसे उनका इंटर रिलेशन, को रिलेशन आपको समझेगा. कि इंटरनल प्रायोरिटी क्या रहती है? जब कभी भी आर बेस्ड ऑन द बर्स्ट टाइम, मेमोरी रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ ओपन फाइल्स एंड ऑल दैट. एंड एक्सटर्नल प्रायोरिटी मतलब क्या? ह्यूमन क्रिएटेड, सीनियरिटी, इन्फ्लुएंसेस, दो टाइप की रहती है. अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन बी आइदर प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है. सो डिपेंडिंग प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव है उसके ऊपर है कि प्रायोरिटी है तो प्रायोरिटी को वाइज प्रोसेस को एंटर करने देना है नहीं देना है, ये फैक्टर डिसाइड करेंगे. बट ये क्या होता है यहाँ पे कि जैसे भी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस एंटर करती है तो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस आउट हो जाएगी. और एल्स कोई भी प्रोसेस नहीं है तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? नॉर्मली हायर प्रायोरिटी प्रोसेस वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट स्टार्ट होगी. एफसीएफएस में क्या देखा? एज इट इज़, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना है. एज द प्रोसेस इन enter system it will be executed till end and it will be get out. Now consider the example of priority scheduling. Starting phase is only different but all other is similar. यहाँ पे क्या है? Consider the following process set of command and calculate the average time. Using priority scheduling क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले देखो प्रोसेस दी है P1, P2, P3, P4, P5. For each process there is a separate burst time that is 10, 1, 2, 1, 5. But here new column arrives that is the priority. सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है और टेंशन मत लो. पहली बात तो कि एफसीएफएस क्या था, अराइवल का टाइम क्या था, एकदम ईजी है. प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम 10 है लेकिन प्रायोरिटी कितनी है? 3. P2 का प्रोसेस टाइम नंबर है P2, सॉरी उसका बर्स्ट टाइम है 1 लेकिन उसकी प्रायोरिटी कितनी है? 1.
P3 का बर्स्ट टाइम 2 है, प्रायोरिटी है 3. P4 burst time is 1, priority is 4. P5 burst time is 5 and priority is 2. नॉर्मल एग्जीक्यूशन में हमने क्या किया था, प्रोसेस P1 P2 P3 P4, लेफ्ट साइड पे वेटिंग टाइम, राइट साइड पे टर्न अराउंड टाइम. करना तो ऐसा ही है, खाली बॉक्स में अलग अलग नाम आएंगे. देखो गैंट चार्ट बनाना है. अभी रिफर करो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो प्रायोरिटी इज 1 which is the highest for the process number 2. So we have written P2, its waiting time is 0. ये देखो. Next is after that 2, so process number 5, but its burst time consider क्या करना है, while writing box we have to just consider priority, else everything is like same like previous problem. P उसके बाद कौन आएगा 5, तो उसको एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगने वाला है 5, तो 1 से लेके 5 टोटल 6 हो गया. नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है 3 नंबर. लेकिन आप क्या बोलोगे सर 3 नंबर तो 2 जगह पे है, P1 भी और P3 भी. अगर ऐसी केस है तो ऐसे केस में क्या फॉलो करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट इज क्यू. तो P1 और P3 पहला कौन आ रहा है P1, सो लिख दिया P1. लेकिन उसका बर्स्ट टाइम कितना था 10, सो प्रीवियस 16 6 प्लस नाउ 10, सो 16. नाउ उसके बाद कौन प्रायोरिटी है, तो आपका 3, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से P3 आएगा. सो 3 दैट इज 16 प्लस P3, लेकिन उसका बर्स्ट टाइम क्या है 2, तो 16 प्लस 2 दैट इज 18 हो गया. और लास्ट में P4 उसकी प्रायोरिटी क्या है 4 नंबर यानी एंडिंग में, तो वो क्या हो गया 19. समझा. गैंट चार्ट है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, खाली बॉक्स को प्लेस करने के लिए प्रायोरिटी की, बाकी कैलकुलेशन तो सेम है. P2 का वेटिंग टाइम 0, P5 का 1, P1 का 6, P3 का 16, P4 का 18. टर्न अराउंड टाइम फॉर P2 1, P5 का 6, P1 का 16, P3 का 18, P4 का 19. खाली ऑर्डरिंग चेंज हुआ है, P1 P2 P4 कैन कन्फ्यूज मत होना, ओनली ऑर्डरिंग, and ordering is depending on the priority which has been provided in your problem. Now similarly simple calculation. वेटिंग टाइम देखो, P1 का कितना है 6, P2 का कितना है ढूंढो 0, P3 कहाँ पे है आगे है, उसका वेटिंग टाइम क्या है 16, P4 कहाँ पे है 18, P5 कहाँ पे 1. एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम है 6 प्लस 0, 0 प्लस 16, 16 प्लस 18 एंड 18 प्लस 1. डिवाइड किया है यहाँ पे 5 से, पहले किया था 3 से, अभी किया है 5 से, बीच में किया था 4 से. क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है तो 5, सो वी हैव टू डिवाइड 41 बाय 5, दैट इज 8.2. बट इन केस ऑफ टर्न अराउंड टाइम क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड की वैल्यू देखेंगे, 16, 6, 1, 19, 18. अगेन हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर बराबर है कि नहीं. वो कैसे देखते थे कि यहाँ पे नहीं वो होगा, ठीक है, लेकिन कैसे P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है तो 16, P2 का 1 दिख रहा है सामने, हाँ, P3 का क्या है 18, P4 ढूंढो लास्ट वाला ब्लॉक 19, P5 सेकंड वाला ब्लॉक दैट इज 6. अभी वापस से सिमिलरली उनका एडिशन करो, 16 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 6, दिख रहा है एवरेज टर्न अराउंड टाइम में, ये देखो यहाँ पे. तो ये समेशन एडिशन क्या आएगा 60. डिवीजन किससे करना है आपको 5 से. क्यों, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज वगैरह फाइंड करना एकदम सिंपल चीज़ है, कंफ्यूज मत होना, और ज़्यादा इजी है, ये समझ के गलती मत करना, और बहुत डिफ़िकल्ट है ये समझ के छोड़ मत देना. तो यहाँ पे क्या आया 60 डिवाइड बाय 5, तो एवरेज क्या आया 12 माइक्रोसेकंड. समझा.
ये था आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सो आज हम लोग ने क्या क्या देखा कि FCFS वाला सेकंड पार्ट, अराइवल टाइम आता है तो करना कुछ नहीं है, सिमिलर एग्जीक्यूशन है, ऐड करो, लेकिन ऐड करने से पहले क्या करना है, माइनस करना है अराइवल टाइम को, किसमें से, गिवन वेटिंग टाइम और गिवन टर्न अराउंड टाइम, एंड लास्ट स्टेप्स आर सिमिलर। इन केस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करना क्या है, सेम करना है, खाली गैंट चार्ट बनाते टाइम बॉक्स आगे पीछे होंगे, कंसेप्ट वही है, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, बट एग्जीक्यूशन क्या हिसाब से होगा, तो आपके प्रायोरिटी के हिसाब से होगा। सो आगे का कैलकुलेशन सिमिलर है, करना ही है ये एग्ज़ाम में, कभी छोड़ो मत, पासिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्चुअली भी इजी है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, थोड़े पढ़ के अच्छे से गारंटेड मार्क है, खाली मैथ्स अच्छे से रखो, दिमाग ठंडे से रखो। कोई भी डाउट रहेगा व्हाट्सएप पे पूछो, अटेंडेंस देना है, बार बार रिपीट कर रहे, कॉल पे पूछो, व्हाट्सएप कॉल करो, वीडियो कॉल करो, कुछ भी करो, डाउट रहेगा कभी भी पूछो, नहीं तो ऐसा होगा सिलेबस आगे जा रहा है, आपके साइड से कोई फॉलोअप नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एंड अदर राउंड रॉबिन एंड ऑल दैट। थैंक यू।